سمجھتے ہیں۔ 20 نومبر کو پشاور میں اسی طرح کا ایک بڑا عوامی مظاہرہ ہوگا اور وہاں پر بھی صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام اس میں اور انشاءاللہ وہ بہت ہی کامیاب مظاہرہ قرار دیا جائے گا۔ ہم آج قوم کو یہ بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ناجائز حکمران اور دھاندلی کی پیداوار حکومت آئندہ الیکشن کے لیے ابھی سے اپنے جعلی پارلیمنٹ کو ایسی آئندہ بھی الیکشن میں بڑی آسانی کے ساتھ وہ دھاندلی کر سکے، لیکن حزب اختلاف سینہ سپر ہو کر اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اسمبلی کے اندر حزب اختلاف ان کو قانون سازی میں شکست بھی دے چکی ہے، اور مشترکہ اجلاس میں انہیں اکثریت حاصل کرنے کی جب امید نہ رہی تو عین وقت پر اس کو ملتوی بھی کر دیا گیا۔ آج جب دوبارہ اجلاس بلایا گیا ہے تو افواہیں گشت کر رہی ہیں، اور یہ صرف افواہیں ہی نہیں بلکہ حقیقت کے قریب تر باتیں ہیں کہ چھوٹی جماعتیں جو ان کی اتحادی ہیں ان کو ریاستی ادارے دباؤ میں لا کر ان کی گردن مروڑ کر اور ان کے گردنوں پر بوٹ رکھ کر ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے اجلاس میں جانا ہے۔ ہمارے پاس یہ رپورٹیں آ رہی ہیں۔ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور جب ادارے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، اور پھر بہت بڑی لیول پر ہم سے یہ بات کی جاتی ہے تو ہم ان پر اعتماد بھی کر لیتے ہیں، لیکن آج پھر ان کی غیر جانبداری مجروح ہو رہی ہے۔ آخر ضرورت کیا ہے کہ یہ سب کچھ 19 نومبر سے پہلے کرنا ہے؟ نہ 19 نومبر کو اور نہ 19 نومبر کے بعد۔ اس سارے معاملے کو مشکوک بناتا ہے کہ شاید سیاسی اداروں یا ان کی کسی شخصیت کے ساتھ کمٹمنٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی کردار پر ایک بدنما داغ ہے۔ اداروں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں غیر متنازع رہنا ہے، ہمیں غیر جانبدار رہنا ہے، اور ہم بھی ان کو غیر متنازع دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کی سیاست سے یہ داغ ختم ہو جائے، لیکن اور وہ بھی ناجائز مداخلت، تو پھر شکایت کرنا تو ہمارا حق ہے، گلہ کرنا تو ہمارا حق ہے۔
ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی آئینی اور قانون پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل جناب شاہد حقان عباسی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے اور فوری طور پر جناب کامران مرتضیٰ صاحب اور عطا تارڑ صاحب کو رابطے میں لیں اور پورا ایک سپریم کورٹ لیول کا ایک قانونی پینل بنائیں اور ان قوانین کا جائزہ لیں تاکہ ہم عدالت سے رجوع کر سکیں۔ ہم قانون اور آئین کا راستہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم اگر عوامی مظاہرے کر رہے ہیں ایک جمہوری ماحول میں عوام کو تسلی دینے کے لیے، یہ ناگزیر امر ہے اور اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو نئی صورتحال ہے اس پر ہم قوم کو ہر وقت اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ملک میں امن و امان ہونا چاہیے۔ امن و امان اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب شہریوں کے انسانی حقوق کا تحفظ ہو، صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو۔ اور اس حوالے سے تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت جو نوجوانوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے، اس کو پھر لاپتہ کر دیا جاتا ہے اور سال ہا سال سے لاپتہ لوگوں کے لیے ان کے پیارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ان کے بوڑھے ماں باپ، ان کے آنسو بھی اب آنکھوں میں نہیں رہے، خشک ہو گئے ہیں۔ ان کے دلوں کے زخم، اس کے لیے مرہم بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن شقی القلب قوت ہے، وہ اس انسانی حق سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے، عدالتیں موجود ہیں، آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، ان راستوں سے ہم کسی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر انصاف کا تقاضا یہی ہے تو پھر ایک جمہوری ماحول میں، ایک جمہوری ملک میں ایسے واقعات، اور کہ جس طرح ایک ڈکٹیٹر کے ملک میں ہوتے ہیں، ایک آمرانہ ممالک میں، بادشاہتوں میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے جیسے جمہوری ملک میں بھی وہی واقعات ہو رہے ہیں۔ کیا فرق ہے دوسرے ملکوں میں اور ہمارے ملک میں؟ کون حاکم ہے یہاں کا؟ نادیدہ قوت ملک کے حاکم ہیں یا آئین اور قانون کی روشنی میں کام کرنے والی قوتیں؟ وہ ملک کے مالک ہیں۔ جا رہا ہے، تشویش پائی جا رہی ہے، اور ہم ایک مطمئن اور اضطراب سے پاک ایک سوسائٹی چاہتے ہیں، ایک معاشرہ چاہتے ہیں جہاں ہر انسان اپنے حقوق کے حوالے سے مطمئن ہو، اور اس پر انشاءاللہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے نئے مستقبل کو ہم تراش سکیں۔ مولانا صاحب، گلگت بلتستان عدالت میں خود ایک سوال یا نشان ہے، کیا ابھی آپ توقع رکھتے ہیں کہ جب عدالت میں آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیے، یہ چیزیں عدالت کے اوپر ایسے داغ ڈال رہے ہیں کہ جس سے ماضی کے تمام فیصلے مشکوک ہو جاتے ہیں، لیکن تاہم ہم پھر بھی اصول کا راستہ نہیں چھوڑتے۔
हम अब भी समझते हैं कि इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। आज़ाद और खुद मुख्तार एक ऐसे इदारे बनने चाहिए कि जो इस किस्म के बयानात का तज्जिया कर सकें, इसके अवामिल को समझ सकें। ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? ये तीसरा चौथा जज है जो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, ऑन रिकॉर्ड कर रहा है, हल्फिया तौर पे कर रहा है, तो जाहिर है इस चीज़ों को जांचना चाहिए। जिसने ये बात की है वो जिंदा है, इससे पहले भी जो जजों ने बातें की हैं वो भी जिंदा हैं। तो फिर इस तरीके से हर चीज़ पर मट्टी पाओ, इससे तो काम नहीं चलेगा जी। मौलाना साहब 20 की बात की, यहाँ पर दो जो है नौजवानों को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का अस्तर सफा किया गया है। इस हवाले से तमाम इम्तिहानात जो कि कल के एहतजाज के एजेंडे में ये भी शामिल होगा। देखिए, हम इंसानी हुकूक की बात ज़रूर करेंगे और ये पूरे मुल्क में है। तालीमी इदारों से लोगों को उठाया जाता है, दीनी मदारस से उठाया जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से उठाया जाता है। अगर वाकई कोई नौजवान इस किस्म के किसी अमल में मुलव्वस है कि जो रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारी नज़र में वो जुर्म है। लेकिन उस जुर्म से निमटने के लिए आईन और कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जबरी तौर पर ये क्या मालूम कि आपने किसको सजा दी और कैसे सजा दी। एक खुफिया इदारा और उसके चंद अफराद वही समझे कि हम मुतमैन हैं, हमने जो कुछ किया है ये काफ़ी नहीं, कौम मुतमैन होने चाहिए। मौलाना साहब नवंबर के बाद आप कितने महीनों तक हुकूमत को चलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ और आप भी शायद यही चाहते हैं कि मैं वो बात करूं कि हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही है। हम चलाने वालों को भी जानते हैं और चलने वालों को भी जानते हैं। अपाहज हुकूमत और सहारे से चलने वाली हुकूमत, ये हुकूमत नहीं कहलाती। हुकूमतें चलनी चाहिए अवाम के सहारे से। मुझे बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है जब हमारे इदारों के ज़िम्मेदारान और सरबराहान इस प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के नाम से पुकारते हैं, जब वो इनको अपना बॉस के नाम से पुकारते हैं। हमें दुख होता है, हमें अफसोस होता है। हमारे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन सिर्फ हम इज्तिनाब कर रहे हैं उससे कि कहीं बहुत ही ज़्यादा मुल्क में मामलात ख़राब ना हो। हम सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात सोचते हैं और सूरत हाल को बिगाड़ से बचाने के लिए सोचते रहते हैं। मेरे ख्याल में हमारे इन जज्बात का एहतराम किया जाए। कौमी असम्बली में और सेनेट में ये जो आपका एक एहतजाजी मरला चल रहा है, इसके बाद आपका क्या कोई राय अमल होगा कौमी असम्बली में या सेनेट में? कोई तब्दीली अनाउंस तब्दीली के हवाले से ये तो हालात में देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल उनको कोई अक्सरियत हासिल नहीं है। उनके इत्तेहादी जो हैं उनको कल तक वोट देने के लिए तैयार नहीं थे और कल ही शाम को जब इजलास बुलाया गया तो उसने एक मैसेज दिया कि शायद, लेकिन इसके दौरान हमारे पास रिपोर्टें आई हैं बाकायदा कि किन किन लोगों को सेफ हाउसों में ले जाया गया, किन किन लोगों को टेलीफोनें की गई हैं और फिर अपोजिशन के मेंबरान को जो टेलीफोनें की गई हैं कि आपने नहीं आना, वो भी हमारे रिपोर्ट में है। तो इसका माना यह है कि एक जबरी अक्सरियत है ना, एक ज़बरदस्ती वाली अक्सरियत और वो भी 4-5 वोटों की अक्सरियत। तो इस तरीके से खींच तान के और ज़बरदस्ती और गर्दन मरोड़ कर और हाथ मरोड़ कर वोट हासिल करना, इससे अगर कोई कानून बनता है वो कोई कानून की हैसियत नहीं रखेगा, उसका कोई एहतराम नहीं होगा। इसका माना है कि मुल्क जबर के तहत चल रहा है। हज़रत, इनके होते हुए ना आप किसी बिजली की तवक्को रखें, न गैस की तवक्को रखें, न पेट्रोल की तवक्को रखें, न चीनी की तवक्को रखें, न घी की तवक्को रखें। यहाँ तो हर रोज़ आप सोचते रहेंगे कि कल कितनी कमी आएगी, कल नर्ख कितने बढ़ेंगे, कल रुपए की कीमत क्या होगी डॉलर के मुकाबले में। अब तकरीबन मैं तो समझता हूँ 175 से तो ऊपर चला गया है मामला और 180 के करीब जा रहा है। तो आम आदमी बेचारा बाज़ार में आपके पैसे की कीमत ही नहीं रही है। कहते हैं जी बाहर से जो पैसा आता है वो
उस डॉलर की कीमत बढ़ जाती है, उस घर को ज़रा पैसा ज़्यादा मिलता है, भाई उसको ये भी सोचना चाहिए कि यही पैसा जब बाज़ार में जाता है तो वहाँ उसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको उस पैसे से कुछ फ़ायदा नहीं हासिल होता जी। तो ये तो एक नुमाइशी किस्म की ऐसे दिल में खुश करने वाली बात है कि जहाँ मेरे घर वाले मेरे प्यारे कल 105 रुपये वसूल करते थे तो आज 170 रुपये और 75 रुपये और 180 वसूल करेंगे। तो वसूल तो करेंगे, लेकिन बाज़ार में जो हमें कल 105 में मिलता था वो आज हमें 180 में नहीं मिल रहा है वो चीज़ जी। हालत यहाँ तक चली गई। आपकी गुर्बतें पीपल्स पार्टी से बढ़ रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी वापस पीडीएम में आ जाएगी? देखिए, इसको अब हम अभी तक कोई संजीदा अमल नहीं समझ रहे हैं। अगर बिलावल साहब मेरे पास आए हैं तो हमने तो कभी किसी को अपने घर में आने से नहीं रोका है। आए हैं, आधा घंटा गुजार के गए हैं। अगर उन्होंने खैर सगारी का मुजाहरा किया है, लेकिन पीडीएम के साथ उनका मुस्तकबिल क्या है या क्या नहीं है, इस पर तो बात ही नहीं हुई। मौलाना साहब, आपने एस्टेब्लिशमेंट से शिकवा किया, लेकिन खबरें यहाँ ये भी हैं कि मियां शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है। इसमें कहाँ तक सदाकत है? हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, हमारे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। यानी इसका माना है कि वो हमें रोने का भी हक नहीं देते। यानी कौम रो रही है, हम रो रहे हैं। वाली हुकूमत है, इनके यहाँ जिहालत, हमाकत, इसके अलावा और कुछ नहीं है। न कोई विजन है, न कोई सोच है, न कोई फलसफा है। बस आ गए और हुकूमत पर बैठ गए। और वो लोग, और आप ही में से, आपकी मीडिया में से वो लोग जिन्होंने उनके लिए कैंपेन चलाई थी, आज वो अपने सर पीट रहे हैं और अपने ऊपर लानतें भेज रहे हैं कि हमने क्या किया था, हमने क्या उम्मीदें वाबस्ता की थी। भाई, एक पढ़ा लिखा आदमी क्यों ऐसे जाहिरों से उम्मीदें वाबस्ता करता है? हम भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं, हम भी तो इसी मुल्क पे रहते हैं, हमारे पास भी जो वसाइल हैं तो इसी मुल्क के वसाइल हैं। हम भी तो इसी बाज़ार से जाकर ख़रीदते हैं और इसी मुल्क में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमने तो बहुत पहले कहा था कि आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, बहुत पहले कहा था। तो थोड़ा सा इन मिस्किनों गरीबों की बात को भी समझ लिया करें कि गरीब मुल्ला के आज़ाद पर कलमा भी पढ़ लिया करो। जी, हमारे राब्तों का माना ये होता है कि मियाँ साहब आ रहे हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है मुल्क के अंदर, उन्हीं के आने का इशू है। वो फैसला उन्होंने खुद करना है, जब वो तशरीफ़ लाए। लेकिन आजकल दुनिया जो है वाबस्ता है। हमने कल भी जूम पर मीटिंग की है, हम ऐसे आपस में बैठे रहे जैसे हम आप एक दूसरे को आमने सामने सुन रहे हैं। मौलाना साहब, असद उमर का कहना है कि अगर अपोजिशन वाले यहाँ पर आए इस्लामाबाद में तो उनके साथ ये असर होगा, लाठीचार्ज होगा, उन पर तशद्दुद होगा। तो क्या इसके बाद आप लोगों का है प्रोग्राम? बढ़ के न मारा करें, हमें बढ़ के मालूम है कि इन बड़कों के लोग हैं। अगर अपोजिशन ने फैसला किया कि तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दे, फिर क्या? तुम्हारी हैसियत क्या है? हाँ? लेकिन बलूचिस्तान में तो इत्तेहादी बन के उनको और सहारा दिया। क्या बलूचिस्तान में अपोजिशन ने बाप पार्टी के एक मुखालिफ ग्रुप को सहारा दे के उसको आगे लाए? बलूचिस्तान की मखसूस सूरत हाल के पेश नज़र ज़ाहिर है जी, मैं अपोजिशन में बैठा हूँ। जब ज़हरी साहब की हुकूमत थी तो हम अपोजिशन में बैठे थे, और अपोजिशन हुकूमत सारी आकर अपोजिशन में बैठ जाए तो फिर मैंने क्या कर रहा है मुझे बताओ उस वक्त। फिर जब सारी हुकूमत अपोजिशन में आ जाए और मैं पहले से अपोजिशन में हूँ और मैं उस वक्त भी लीडर अपोजिशन था और मैं आज भी लीडर अपोजिशन हूँ और मेरे दामन में आकर गिर जाए सारे, तो फिर हमने तो उसी के मुताबिक फैसले करने होते हैं। वो ना आते तो हमने कोई दरख्वास्त तो नहीं की थी उनसे। देखिए, हमने चूँकि हुकूमत में न आने का फ़ैसला किया था, हमने अपोजिशन में बरकरार रहने का फ़ैसला किया था, हमने बावजूद इस सारी सूरत हाल की तब्दीली के उनकी हुकूमत में शामिल न होने का फ़ैसला किया था। उस उसूल पर हम कायम रहे हैं जी, हम अपने उसूल से नहीं हटते। पंजाब की हुकूमत गिराने में बताया जा रहा है कि मियाँ शहबाज शरीफ सबसे बड़ी रुकावट है। वो कहते हैं कि ये उस्मान बुज़दार है, तो इसमें कहाँ तक है? क्या कभी आप लोगों ने एहतजाज किया है कि पंजाब की हुकूमत गिराई जाए? पंजाब की हुकूमत गिराने से पहले ये सोचें कि मुतबादल क्या है। तो अगर मुतबादल उससे भी ज़्यादा ख़राब हो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए सारी चीज़ें को सियासतदानों पे ज़रा छोड़ दें, हम बड़ा ठीक ठाक फैसले करते हैं, सब कुछ बड़ा
हिसाब किताब ठीक रखते हैं हम लोग। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया आपका जी।